کر تصویر کربلا دل کی حدوں میں کھینچ کر تصویر کربلا کعبہ ایک کعبے کے اندر بنائیں گے ہم دل کو مرکز ہمیں جناب حسین رضوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں آپ کے استقبال کے لیے بآواز بلند سلوات پڑھیں. سنا کھینچ رہے
جو پر محمد عالم ایک اور جو پر محمد عالم مقدم علی کی غیر کے کار مسلط ہے اور رہے زندہ یا مر جائے بہر صورت ہلاکت ہے. علی باب شہر علم باب شہر حکمت ہے. علی سے دور رہنا ہی جہالت حماقت ہے اور گرا کر اپنے دشمن کو اترانا سینے سے گرا کر اپنے دشمن کو اترانا وہ سینے سے. شجاعت سی شجاعت ہے سخاوت سی سخاوت سی سخاوت ہے اور کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت. جزاک اللہ. بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے جناب حسین رضوی صاحب. آپ محدود ہو رہے تھے. مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل پیش کر رہے تھے تو 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ وجہ کبریا نازش مرسلین علی ہے. وجہ کبریا نازش مرسلین علی ہے تو امام المتقین یاسف الدین علی ہے. وجہ کبریا نازش مرسلین علی ہے یاسف الدین تو امام متقین علی ہے. تو جن کے آنے سے ہوئی اپنی جبین روشن قائد الغر المحجلین علی ہے. قائد الغر المحجلین علی ہے. ہم گزارش گزارے جناب شاہد بھائی سے کہ آپ تشریف لائیں ان کے استقبال کے لیے باواز بلند تلوار پڑھیں.
چوکھٹ پہ سر جھکانے سے، تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے قر علیہ السلام ہے زینب، قر علیہ السلام ہے زینب، تجھ سے آگے چلے تو کیسے چلیں، تجھ سے آگے چلے تو کیسے چلیں، وقت تیرا غلام ہے زینب، وقت تیرا غلام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، صلوات شکر یہ تھے جناب شاہد صاحب، جناب محنت سلام اللہ علیہ کہ ہمارے سے اشعار پیش کر رہے تھے. آئیے شمیم بھائی کو آواز دیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی 4 قصوں کے ساتھ کہ ہو سکے کیا تیری ثنا زینب، ہو سکے کیا تیری ثنا زینب، تو ہے اسلام کی بقا زینب، ہو سکے کیا تیری ثنا زینب، تو ہے اسلام کی بقا زینب. تو بات سرور تیری قیادت میں، بات سرور تیری قیادت میں کاروان عمل چلا زینب، بات سرور تیری قیادت میں کاروان عمل چلا زینب. جناب شمیم بھائی سے گزارش ہے تشریف آپ کے استقبال کے لیے باواز بلند کروا. ڈاکٹر میام آدمی کا سنت ہے، اس کا عنوان ہے زبان، کیونکہ یہ ہم نے ہمارا رکھا ہوا ہے. زبان دانش و فکر و نظر کی قوت ہے، زبان ظاہر میں انسان کی ضرورت ہے، زبان جذبہ صدق و صفا کی دولت ہے، زبان میثم تمار کی امانت ہے. رکانہ ذکر علی بدگمان ہار گئے، زبان کاٹنے والے زبان ہار گئے. زبان نکاح تو گل بھی ہے، نوک خنجر بھی، زبان نار جہنم بھی، موج کوثر بھی، زبان مرہم زخم و جگر بھی، نکتر بھی، زبان پھول بھی ہے، آگ بھی ہے، پتھر بھی. کبھی خلوص و وفا کو سلام کرتی ہے، یہی زبان کبھی قتل عام کرتی ہے. عجیب چیز ہے، زمانے میں یہ زبان بھی ہے، ستم فروش بھی ہے، حق کی ترجمان بھی ہے، جفا پسند بھی، اہل وفا کی شان بھی ہے، زمین پست بھی، عظمت کا آسمان بھی ہے. صنم قدوں میں کبھی جا کے جان دیتی ہے، کبھی یہ نو کے سنا پہ اذان دیتی ہے. زبان کا حق ہے کہ تسبیح کردگار کرو، زبان ملی ہے تو حق اس کے آشکار کرو، زبان سے تذکرے شاہ نامدار کرو، وعدۂ ذکر سے اس کو نہ داغ داغ کرو. بتا دو ان سے کہ جو اول و فول بکتے ہیں
नाम लेना है। एक और नारे सलमान। अली के जिक्र शैतान होता है बहरा, न झूठ कोई कभी हक के सामने ठहरा। जबान का घाव है खंजर के घाव से गहरा, इसीलिए तो है 32 दांत का पहरा, इसीलिए तो है 32 दांत का पहरा। हुई जो काबू से बाहर तो एक आफत है, और दहन में गोद का टुकड़ा नहीं, एक आफत है। नारे सलवार। अली के बॉक्स में फितरे उठाए हैं इसने, रहे हयात में कांटे बिछाए हैं इसने, तरह तरह के फदाने बनाए हैं इसने, जमीन पे खून के दरिया बहाए हैं इसने। दहन में जुल्म की कैंची की तरह चलने लगी, जमल के दस्त में पहुंची तो जहर उगलने लगी। नारे सलवार। चमन के फूल में खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं, चमन के फूल में खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं, हवाए सद लब जो नहीं तो कुछ भी नहीं, जो एहतराम मन तो नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर जबान पे काबू नहीं तो कुछ भी नहीं। कि बात कहने की है जो वही कहो भाई, बोलना नहीं आता तो चुप रहो भाई, बोलना नहीं आता तो चुप रहो भाई। एक और नारे सलमान। अली खामोश थे बादे पैगंबरे अकरम, नबी के शहर में फैले हुए रंजो अलम, निकाला फातिमा ज़हरा ने अपने घर से कदम, दिया वो खुतबा की थर्रा गए सब अहले सितम। कि ये काम तेरे शायद नामदार न कर सकी, पिया ज़बान जो ज़ुल्फ़िकार न कर सकी। तो बस की ज़हमत हो रही है, ज़बान बदलती है दुनिया में आदमी के मिजाज, ज़बान करती है अल्फाज से गमों के इलाज, ज़बान लेती है अहले नजर से अपना खिराज। मगर नहीं है मगर नहीं सदाकत ज़बान की मोहताज, ज़बान कह न सकी हक की तर्जुमानी के लिए, ये जो कह दिया अली असगर ने बेज़बानी में। और ज़बान खुश्क के जौहर दिखा गए असगर, शहीद हो के ज़माने में छा गए असगर, सितमगरों में कयामत उठा गए असगर, निशाने बैअते फासिक मिटा गए असगर। यजीदियत जहाँ में दुकान खुल न सकी, फिर इसके बाद किसी की ज़बान खुल न सकी। नारे सलवार। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बान के हवाले से अशार पेश कर रहे थे जनाब शमीम लुत्फ़ी साहब। उनकी सेहत व सलामती के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ा। आइए हज़रात मोमिन 4 मिनटों से दावत मुकम्मल देने की कोशिश करेंगे कि माह अज़ा करीब है, इंशाअल्लाह अय्याम अज़ा आप सब मुंतज़िर है उसके कि अय्याम अज़ा अपने यहाँ मुनक़्क़िद करें। अय्याम अज़ा के हवाले से माह मुहर्रम के हवाले से 4 मिसरे समाज फरमा है। जनाब फ़िरोज़ सुल्तान लखनवी साहब कहते हैं कि जब दिल ने किया जन्नत का इरादा पहले, जब दिल ने किया जन्नत का इरादा पहले, खालिक ने कहा अश्क अदा ला पहले। जब दिल ने किया जन्नत का इरादा पहले, खालिक ने कहा अश्क अदा ला पहले, तो साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा है मुहर्रम का महीना पहले, इसलिए रखा है मुहर्रम का महीना पहले। हम गुजारिश गुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना इक़्तिदार मेहंदी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने बयान से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपके इस्तिक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें।
नारे सलवात। ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ خاتون بنت جعفر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا و مولا الکونین رسول الثقلین صاحب القوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، صاحبان صدق و صفا، محبان آل ابا، مالکان فہم و ذکا، حامیان علم و حکمت، حاملان قرآن و عطرت، صاحبان ایمان و معرفت، ہم سب جمع ہوئے ہیں ایک والدہ کو ایصال کرنے کے لیے اور فرصہ دینے کے لیے، اور ابھی شمیم صاحب فضائل علی بزبان قیام اعظمی صاحب بیان فرما رہے تھے، تو میں نے بھی سوچا کہ اس کو مکمل کیا جائے اور اس فضائل کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو زبان میری ہے، ذکر علی کا ہے، سماعت آپ کی ہے۔ دیکھیں، بیداری کے ساتھ آپ حضرات سنیے گا، اور میری ایک عادت ہے کہ میں زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جو آدھے گھنٹے میں نہیں سمجھا پایا وہ 1.5 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا پایا، وہ 1.5 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اور مجھے ایسا لگے کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے بھایا، اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی، یہ تو فضائل اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، زینوا مجالسکم بذکر بلا تمہید، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ یہی حدیث کا خلاصہ ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ جماعت صاحب نے اور ان کے خانوادے والوں نے، ان کے گھر والوں نے فرش عزا بچھا دیا بعنوان زینت علی سے۔
फर्श अज़ा बिछाने के बाद मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। बहुत तवज्जो है, ज़ीनत दो ज़िक्र अली से, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को ज़ीनत दो अली के नाम से, ज़िक्र अली से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप आदम के भी जिक्र को कह सकते थे ज़ीनत दो, आप जनाब इब्राहीम के भी जिक्र को इबादत करार दे सकते थे, आप जनाब मूसा के जिक्र को भी इबादत करार दे सकते थे, आप जनाब ईसा के जिक्र को भी इबादत करार दे सकते थे, आप कुल अंबिया का जिक्र से इबादत को करार दे सकते थे। तो अजब नहीं मेरा रसूल आवाज देगा कि अगर मैं कह देता कि तुम आदम का जिक्र करो तो फकत आदम का जिक्र होता, अगर मैं कह देता कि तुम तज़किरा इब्राहीम करो तो तज़किरा इब्राहीम तक महदूद रह जाता, अगर मैं कह देता कि तुम ज़िक्र मूसा और ईसा करो तो फकत ज़िक्र मूसा और ईसा होता, अगर मैं कह देता कि तुम ज़िक्र इब्राहीम करो तो फकत ज़िक्र इब्राहीम होता। बेदारी के साथ सुनिएगा, अगर मैं कह देता कि तुम नूह का जिक्र करो तो फकत नूह का जिक्र होता। तो आप कितने नबियों का जिक्र करते, नबियों का जिक्र करते करते दुनिया से चले जाते, नबियों का जिक्र न हो पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे को चुना जाए कि जिसमें आदम का इल्म भी मौजूद हो, मैंने सोचा कि आदम का जिक्र भी मौजूद हो और यूसुफ का हुस्न भी मौजूद हो, मूसा की हैबत भी मौजूद हो, यूसुफ का हुस्न भी मौजूद हो, मूसा की हैबत भी मौजूद हो, मोहम्मद के अखलाक भी मौजूद हो, मोहम्मद के अखलाक भी मौजूद हो। तो मुझे कायनात में सिर्फ एक इंसान मिला, एक शख्स मिला जिसका नाम अली है। अब अली का जिक्र करोगे तो आदम का जिक्र होगा, मूसा का जिक्र होगा, इब्राहिम का जिक्र होगा, यहिया का जिक्र होगा, यूशा का जिक्र होगा, इब्राहिम का जिक्र होगा। तो अब जब तुम जिक्र अली करोगे तो मेरा जिक्र होगा। नबी फरमा रहे हैं जब तुम अली का जिक्र करोगे तो मेरा जिक्र होगा, मेरा जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र होगा, और खुदा का जिक्र होगा तो आईने इबादत होगी। सलावत पर मोहम्मद वाले और हमारा रवैया, हमारा कानून, हमारी रोटी यही है कि हमारा मरता है लेकिन फज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद के होते हैं, हमारा दुनिया से जाता है लेकिन गम हुसैन का होता है। ए मेरे नबी, मैंने फर्श अज़ा बिछा दी, अब क्या करूं? तो नबी ने फरमाया जिक्रो अली नबादा, इंशाअल्लाह वजू में आएंगे। जिक्रो अली नबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। हदीसों पे गौर करते जाइएगा, हदीसों से वाज़े करूंगा। जिक्रो अली नबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, बारगाह रिसालत में हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में सवाल करता हूँ, ए मेरे रसूल, आपने फरमाया जिक्रो अली नबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। तो हर जगह तो अली का जिक्र करने नहीं दिया जाता, हर जगह अली का जिक्र करने नहीं दिया जाता। जहाँ जितने मानने वाले होते उससे कहीं ज्यादा दुश्मन होते हैं, उससे ज्यादा दुश्मन होते। तो नबी ने फरमाया कि जब तुम अली का जिक्र न कर पाओ, जब तुम अली का जिक्र न कर पाओ तो अन्नज़्रु अला वजहि अली नबादा, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। हदीस समझ में आ गई? अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। मैंने फिर दस्ते बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद की और सवाल किया, मैंने कहा नबी खुदा, आपने फरमाया अन्नज़्रु अला वजहि अली नबादा, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। तो ये इबादत तो उसी दौर वाले अंजाम दे सकते हैं जो अली के दौर में हो। आप गौर कर रहे हैं? ये इबादत तो उसी दौर वाले अंजाम दे सकते हैं जो अली के दौर में हो। कभी अली को मैदान में देखा होगा, कभी अली को घर से बरामद होते हुए देखा होगा, कभी अली को मस्जिद में देखा होगा, कभी अली को जंग करते हुए देखा होगा। तो ये इबादत तो उसी दौर वाले अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद वाला जो दौर आएगा वो महरूम इबादत रह जाएगा। तो नबी ने फरमाया कि जब तुम अली का जिक्र नहीं कर पाओ, अली के चेहरे पर ज़ियारत न कर पाओ तो हुब्बो अली नबादा, हुब्बो अली नबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना भी इबादत है।
अली का जिक्र इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। अब मैं आपके सामने जुमला एक कहूंगा, समझना आपका काम है, फज़ाइल अली है, इसलिए कि हमने उस अली को माना है जो मैदान वाला है, मकान वाला है। हमने उससे माना है। गोया मेरा नबी ये चाह रहा था मेरे चाहने वालों की ज़बान न जिक्र अली से खाली हो, मेरे चाहने वालों की आंख न नूर अली से खाली हो, न मेरे चाहने वालों का दिल हुब्बे अली से खाली हो। तो मेरे अजीजों, आप इंसाफ करो कि जिस चाहने वाले की आंख में नूर अली होगा, जिस ज़बान पर जिक्र अली होगा, जिस दिल में हुब्बे अली होगा, अगर वो पुलिस सराज से बरोज़ महशर गुजरेगा तो जहन्नम से आवाज आएगी, ऐ मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे नूर की वजह से मेरी आंख उतार। सलावत पर मोहम्मद वाले यादगार बनाने के लिए पढ़ता हूँ। और आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा वो फजीलत का गोशा, लेकिन अगर कुछ अलग लगे तो दुआओं में जरूर नवाजिएगा। कौन अली? वो अली है जो रसालत की जान बचा ले, जो रसालत की जान बचा ले। आपको याद आ गया शब हिजरत का वो मंजर, शब हिजरत का वो मंजर। ए मेरे हबीब, आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, यहाँ से हिजरत कर जाएं और अली को अपने बिस्तर पर सुला दें। आपने सुना होगा बारहा, कद्र कीजिएगा, अपने बिस्तर पर अली को सुला दें। नबी ने कहा, या अली आज की रात आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। अली ने जुमला कहा, या रसूल खुदा, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? तो रसूल ने कहा, हाँ अली, तुम्हारे सो जाने से मेरी जान बच जाएगी। तो अली ने तारीखी जुमला कहा, अगर इमामत के सो जाने से रसालत की जान बच जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी? ये आपने सुना है बारहा। नबी हिजरत कर रहे हैं और हिजरत करने से कब एक अमल अंजाम दे रहे हैं। वो अमल क्या है? एक मुश्ते खाक उठाई, एक मुश्ते खाक, उशाल भाई, एक मुश्ते खाक उठाई। और उठाने के बाद मैंने सोचा तो हो सकता है नबी कुछ पढ़े, कुछ तिलावत करें, अली के बिस्तर का एहसार करें, कुछ पढ़ें, कुछ तिलावत करें। जुमला रायगा मत जाने दीजिएगा, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है कि मैं हीरे जलाकर आलू उबालूं, हीरे जलाकर, डायमंड जलाकर आलू उबालूं। अली ने, रसूल ने मुश्ते खाक उठाई और उठाने के बाद उसे मैंने सोचा कुछ पढ़ेंगे, कुछ तिलावत करेंगे, अली के बिस्तर का एहसार करेंगे। नबी ने न कुछ पढ़ा, न कुछ एहसार किया, न कुछ तिलावत किया। एक मुश्ते खाक, खाक मतलब मिट्टी, एक मुश्ते खाक उठाई और उठाने के बाद उसे हवा में मुंतशिर कर दिया। और उसे उठाया और हवा में मुंतशिर कर दी। चलिए लीजिए दूसरा जुमला, उसे उठाया और हवा में
آپ کے سامنے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. اور اجر چاہیے اس لیے کہ معصومین کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. علی بستر رسول پر اور آنے کے بعد ایسی اطمینان کی نیند سوئے, ایسی اطمینان کی نیند سوئے کہ مرضی پروردگار خرید لیا, مرضی پروردگار خرید لیا. اور جب علی ایسی اطمینان کی نیند سو رہے ہیں تو کائنات کا فریضہ نہیں کہ علی کے سونے کی فضیلت بیان کرے. کائنات کا یہ فرض نہیں ہے کہ علی کے سونے کے فضیلت کو بیان کرے. ہاں, کائنات کی تمام اشیاء نے علی کا قصیدہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. میں کائنات کے ذرے ذروں کا نام نہیں لے سکتا, میں کائنات کی اشیاء کا نام نہیں لے سکتا. تو حروف تہجی نے علی کا قصیدہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. علی پہلی مرتبہ اطمینان کی نیند سو رہے ہیں اور اشیاء کائنات نے علی کا قصیدہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے, بے نے کہا باب العلم سو رہا ہے, تے نے کہا تاجدار انبیاء سو رہا ہے, سے نے کہا صاحب کرم سو رہا ہے, جن نے کہا جرحان سو رہا ہے, اے نے کہا حیدر کا رب سو رہا ہے, خے نے کہا خندق کا فاتح سو رہا ہے, دال نے کہا داؤد کا وارث سو رہا ہے, زال نے کہا ذوالفقار کا وارث سو رہا ہے, رے نے کہا رہنمائی دین سو رہا پتا ہوگا, رے نے کہا رہنمائی دین سو رہا ہے, سے نے کہا زیر تلوار سو رہا ہے, سین نے کہا سکون اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے, شین نے کہا شمس و قمر کا جاننے والا, شین نے کہا شمس و قمر کا جاننے والا سو رہا ہے, سواد نے کہا سب کر سو رہا ہے, سواد نے کہا ذوالفقار کا علم سو رہا ہے, عین نے کہا اللہ سو رہا ہے, غین نے کہا غریب و کمر کا سو رہا ہے. علی کی فضیلت سن رہے ہیں آپ. غین نے کہا غریب و کمر کا سو رہا ہے, سے نے کہا فاتح خیبر سو رہا ہے, کاف نے کہا کریم ابن کریم سو رہا ہے, کاف نے کہا قرآن ناطق سو رہا ہے, وہاں نے کہا وجہ اللہ سو رہا ہے, یہ نے کہا ید اللہ سو رہا ہے, یہ نے کہا ہدایت کا رہنما سو رہا ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. اللہ نے کہا میرا ولی سو رہا ہے, رسول نے کہا میرا وسی سو رہا ہے, فاطمہ نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے, حسنین نے کہا میرا بابا سو رہا ہے, انبیاء نے کہا میرا وارث سو رہا ہے, اشیاء کائنات نے کہا میرا رازق سو رہا ہے, مومنین نے کہا میرا مولا سو رہا ہے. گرامی یہ علی ہے. کسی مجلس میں نے یہ 4 مصرے بیان کیے تھے, بات آ گئی ہے تو بیان کروں. ابھی آپ برادران سے سن رہے تھے, علی کی فضیلت سن رہے تھے, انہیں خبر ہی نہیں کہاں کہاں ہے علی, انہیں خبر ہی نہیں کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت انہیں خبر ہی نہیں کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. اور ادھر سے بات محمد ادھر سے بات خدا, انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے. سمجھ میں نہ آئے کسی کو, اگر علی کی محبت, علی کی فضیلت, علی کا نام سمجھ میں نہ آئے تو آج میں اس مجلس سے ایک مرحومہ کے سال ثواب کے عنوان سے, اور یہی ذریعہ مصروں کا ہوگا, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنہیں علی سمجھ میں نہ آئے, جنہیں علی سمجھ میں نہ آئے, وہ آج 4 مصرے نقصے میں لے جائیں. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو, دور ذہنوں سے تیرگی کر لو, ذکر حیدر سے روشنی کر لو, ذکر حیدر سے روشنی کر لو, اور جی رہے ہو بغیر حب علی, اس سے بہتر کہ خود کو ٹھیک کر لو. محمد کمال علی, آواز بلند حیدر سلوار.
तो मैं आज इंसाफ किए दे रहा हूँ, मैं इंसाफ किए दे रहा हूँ कि अली की ज़ात का नाम है। अली हमारी मोहताज नहीं, अली हमारे मोहताज नहीं, अली चरिन के मोहताज नहीं, अली पहाड़ों के मोहताज नहीं। जहां सारी कायनात, मैं शियों को भी कह रहा हूं, जहां सारी कायनात अली को छोड़ दे तो अली का कुछ बिगड़ता नहीं। जहां सारी कायनात अली को छोड़ दे तो अली का कुछ बिगड़ता नहीं, और जिसे अली छोड़ दे उसका कुछ बनता नहीं। मैं दो मिसरे पढ़ूं, तुझ में और मुझ में, तुझ में और मुझ में बस फर्क इतना है मोहसिन, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे बुलंद तलवार, ये चाहने वाले हैं जिनकी ज़बान कभी रुकती नहीं, इसलिए कि मुझे छठे इमाम के दौर का एक वाक़या याद आ गया। और वजद कीजिएगा मेरे अजीज़ों, छठे इमाम के दौर में इमाम अपने साथियों के साथ एक जगह से गुजर रहे हैं कि सहाबियों में से कुछ सहाबियों की निगाह आसमान पर पड़ी। देखिएगा, आसमान पर पड़ी, और पढ़ने के बाद एक सहाबी कहता है कि देखो वो कितना सितारा कितना खूबसूरत है, वो सितारा आपके लिए है जितने भी नारे वाले हैं, ये सितारा कितना खूबसूरत है। तो दूसरा साहबी कहता है नहीं नहीं, देखो वो कितना खूबसूरत है, वो सितारा कितना खूबसूरत है। तीसरा वाला कहता है हटो, वो देखो कितना खूबसूरत है। ये जब कहते कहते खामोश हो गए तो इमाम ने कहा कि खामोश हो गए, देख चुके, बयान कर चुके, कहा अब जरा आसमान की तरफ देखो, अब जरा आसमान की तरफ देखो। जब तमाम सहाबियों ने आसमान की तरफ देखा तो फरिश्ते कह रहे थे वो अज़हर कितना खूबसूरत है, वो चाहने वाला कितना खूबसूरत है, वो शिया कितना खूबसूरत है। सलावत पे मोहम्मद ये है अली की फजीलत। हम जैसे कमतर, बस हम जैसे कमतर, हम जैसे कम इल्म वाले हैं। जहाँ मेरे अजीज़ों, मेरा एक जुमला है जो मैं अक्सर मजलिसों में बयान करता हूँ, हम सब की फजीलत है कि हमें ये फर्श अज़ा मिली, ये फर्श अज़ा मिली। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हम उसका तज़किरा कर रहे हैं, उसके फजीलत बयान कर रहे हैं, उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। हमें ये शरफ़ मिला है कि जो शरफ़ हमारा हक़ नहीं है, हम जहाँ 5 मिनट उर्दू सही से नहीं बोल सकते, हम जहाँ 5 मिनट सही से उर्दू नहीं बोल सकते, वहाँ हमारे लिए, हम सब के लिए शरफ नहीं है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने हमको चुना, किसी को सोसानी के लिए चुना, किसी को सलाम के लिए, किसी को शायरी के लिए, किसी को मजलिस के लिए। मेरे अजीज़ों, ये मजलिस हुसैन है, एक ये वाक़या और ख़त्म दुआ हम चाहने वाले हैं। ये थोड़ा सा मौजूद से हटके हो, यहीं से रख दूँगा। हमारे हमसे किताब है मजलिस की, उसमें यह वाक़या मिलता है। मैंने पहले कह दिया कि यहाँ से रब्त है और ये थोड़ा से मौजूद से हटके है। हमारे हमसा आज़ादारों आपके लिए है। मैंने अपने लिए कह दिया कि जहाँ 5 मिनट में उर्दू नहीं बोल सकता, वहाँ ज़िक्र मोहम्मद मोहम्मद बयान कर रहा हूँ। ये हमारे लिए फजीलत है। बीवी तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि हम जैसों को चुना। हमारे हमसा का एक वाक़या है कि एक मुअज़्ज़िमा, अय्याम अज़ा भी आपको सही साहब ने बयान किया आने वाला है। एक मुअज़्ज़िमा की बेटी हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे गई। जाने के बाद देखा एक कानूनी ने खतीब एक साथ हरम इमाम में है, वो मुअज़्ज़िमा गई और जाने के बाद कहा आगा
आप मजलिसें पढ़ते हैं, आप मजलिसें पढ़ते हैं, कुछ नसीहत भी हो जाएगी जी। जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें नवाजा है उसके एतबार से पढ़ते हैं। ये एड्रेस है, आप फला दिन आ जाइएगा, ठीक है। पहले का दौर बुजुर्गान हमारी बात की तस्दीक करेंगे कि ना ट्रेन की सवारी थी ना प्लेन की सवारी थी, ऊँट गाड़ी और नाव वगैरह की शिप वगैरह की सवारी थी। वो दिन भी आया और तारीख भी आई, उसी तरह से वो उस गांव तक पहुँचे, उस बस्ती तक पहुँचे और पहुँचने के बाद लोगों से दरियाफ्त किया कि ये मुअज़्ज़मा यहीं पर रहती है। कहा हाँ, ये मुअज़्ज़मा यहीं पर रहती है, क्या मजलिस का एहतमाम है? कहा नहीं, मजलिस का तो कोई एहतमाम नहीं है, लेकिन हाँ मुअज़्ज़मा यहीं रहती है। वो एड्रेस पर गए और जाने के बाद दखुलबाब किया। दखुलबाब करने के बाद दरवाज़ा खुला और खुलने के बाद वो मुअज़्ज़मा ने आ गए, आइए बिस्मिल्लाह। वो ले जाके अपने ज़ियाफ़त कुनवान से जो भी हुआ ज़ियाफ़त किया और करने के बाद जब फर्श-ए-अता पर गए, जाने के बाद देखा कि एक मिंबर रखा हुआ है, फर्श-ए-अता बिछी हुई है, न कोई सुनने वाला है न कोई दाद देने वाला है। मैं अपने लिए कह दूँ मजलिस वही पढ़ूंगा कि जहाँ लिफाफा ज़्यादा हो, मजलिस वही कामयाब है जिसमें शेमाल हो, तबरुक महंगा हो। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम वो जिक्र है कि जहाँ अगर एक बूंद एक कतरा पानी भी पिला दिया जाए तो मजलिस में हुसैन कामयाब है। एक गुजारिश रहती है, एक तमन्ना आरज़ू रहती है कि मैं मजलिस के एंडिंग में कुछ नसीहतें अपने जवान भाइयों की ज़रूर करता हूँ। मुझे मालूम है बता सकता हूँ, मैं अगर हिला सकता हूँ, इतना तो अपने ऊपर भरोसा है शहजादी का किया हुआ। तो जाने के बाद देखा यार क्या कहाँ आके फंस गया, आपकी दुकान पे कौन, न कोई सुनने वाला है न कोई दाद देने वाला है, न कोई है कुछ, एक सुनने वाली है सुनाने वाला है। आखिर के जुमले पर खुदा की कसम अगर दिल न टूटे तो कहना। अब तो आ ही गया हूँ, पढ़ के जाता हूँ। मजलिस का वक्त हुआ, मुअज़्ज़मा ने कहा बिस्मिल्लाह। मजलिस हुई तो खुद कहते कि मुअज़्ज़मा ऐसे रो रही थी मसाहिब में कि जैसे उसका जवान बेटा मर गया हो। मजलिस खत्म हुई, जाने लगा, जो भी उससे ज़ियाफ़त हो सकी, जो भी अपने ज़बान में कहते दिया। उसने कहा कि जा तो रहे हो, आइंदा साल फिर आना है, यहीं से दिल को झंडोड़ना है, आइंदा साल फिर आना है। अभी मुंबई से आप गाँव जाएंगे, अपने अपने वतन जाएंगे, अय्याम अज़ान गाँव जहाँ वापस फिर आना है तारीख में। ये चले गए, तारीख महीना साल गुजरता रहा, तारीख आ गई, वो दिन भी आ गए जिसको सुबह में हमें उस आलिम दीन को जाना है। जिस तरह बैठे हुए जाएँ न जाएँ, एक सुनने वाली है, सुनाने वाला है, न कोई दाब देना, तहसील देना, ना पैसा भी नहीं है लिफाफे में कि जितना हम उसे बचा सके इतना है कि अपनी जेब से भी किराया देना पड़ रहा है। ये कहते कहते मेरे अजीज़ों में बहुत ज़्यादा तमहीद में नहीं जाना चाहता हूँ। ये कहते कहते सो गए। सोने के बाद बाद में देखा कि खुद मौला हुसैन व नफ्से नफीस आए हुए। मैंने किताब का नाम बता दिया, हमारे खमसा छोटी सी किताब है जिसकी है, खुद मौला नफ्से नफीस मौला हुसैन आए हुए और कह रहे हैं ना जाकिर, ए जाकिर तू इतना बड़ा जाकिर हो गया कि तुम मेरी मजलिस से इनकार कर रहा है। मौला गलती हुई, माफ़ कर दीजिए। किसी तरह से भी तारीख में उस किताब में भी जुमले नहीं लिखे कि वो किस तरह से उस मुअज़्ज़मा के दौलत कदे पर गरीब खाने पर पहुंची है। जुमला एक है, जैसे ही दौलत कदे पर गरीब खाने पर पहुंचे, दरवाजे को दखुलबाब किया। दखुलबाब करने के बाद जब मुअज़्ज़मा ने दरवाजा खोला है तो एक जुमला कहती है कि जब मौला की डांट पड़ी तब आए। जब मौला की डांट पड़ी है तब आए। आलिम दीन ने ख्वाब देखा हरम में, आलिम दीन ने ख्वाब देखा ईरान में, मशहद में। इस मुअज़्ज़मा को कैसे मालूम हो गया? तो अजब ने मेरा मौला आवाज देगा कि मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि सिद्के दिल से अहले बैत को मानो। अगर गली में और रोड पर चौराहे पर बैठ जाओगे तो अगर निशान खींचोगे तो जन्नत में मकान बेच दोगे। हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं है, हमारे यहाँ दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त अगर हो तो इजाज़त दे तो मैं एक जुमला आपके सामने ईरानी इस्फहान का बयान कर दूँ। इस्फहान का है कि बहुत जल्दी इस्फहान का है कि ईरानी बच्चे एक मजलिस का एहतमाम करते हैं छोटी से, बहुत जल्दी आपने सुना होगा, अली रज़ा रिज़वी साहब ने भी बयान किया इसे। बच्चों ने मजलिस का एहतमाम किया और एहतमाम करने के बाद उस आलिम दीन के पास गए जो बहुत बड़ा उस दौर का खतीब था, अपने दौर का, यानी वक्त उसके पास नहीं था, मजलिसें ज़्यादा थी। तो
तो गए और इसी तरह से खुशामद और दरामद करने के बाद कहा कि आप मेरे हम 5 मिनट आके पढ़ दीजिए। वो गए और 5 मिनट में जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ। 5 मिनट गए और जाने के बाद जैसे भी हुआ मसाइल व फजाइल बयान किया, और बयान करने के बाद चलने लगे तो बच्चों ने चाय का कूजा पेश किया, चाय पेश की। तो जब चाय पेश की तो ये लबों तक लेके गए तो चाय ठंडी थी। सोचा है ठंडी चाय है, मज़ा नहीं है, तो उन्होंने घूट दिया, उसे किनारे डाल दिया। आप में देखते हैं कि खुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ये मोजिज़े हैं, जिंदा मोजिज़े। जनाब फातिमा आई और कहा है जाकिर बहुत बड़ा जाकिर हो गया है, तो बहुत बड़ा खतीब हो गया है, तूने जो चाय ज़मीन पर फेंकी वो जानते हो बच्चों ने नहीं बनाया था, हमने उसे तैयार किया। अजरकुमुल्लाह। बस मेरे अज़ीज़ों खत्म कर दी, इंशाअल्लाह फिर कभी हयात रही तो आपके सामने बयान करूँगा। और मसाइल से पहले एक ऐलान समाअत फरमा ले जो हमें इंतज़ामिया ने बयान किया था कि बयान कर दीजिएगा। आने वाली ईद उल अज़हा में ईद कुर्बानी का हिस्सा अगर आप हज़रात लेना चाहते हैं इस्लामिया के इंतज़ामिया में, तो आप हज़रात कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। और हिस्से का जो प्राइस रखा गया है वो 3000 रुपये रखा गया है। एक हिस्से का जो फेयर और पैसा रखा गया है वो 3000 रुपये रखा गया है। जिन हज़रात भी ख्वाहिशमंद हैं वो इंतज़ामिया इस्लामिया से रब्ता कर सकें। मेरे अज़ीज़ों ये है मजलिस हुसैन, यहाँ लोगों ने अपने औलाद को बेच कर किया है मुस्लिमा की सले सवाब के वजह से। मेरे अज़ीज़ों अगर रोना ना आए जनाब फातिमा ज़हरा से दुआ किया करें। अभी आप मौला कायनात के फजीलत बयान सुन रहे थे और इससे मजलिस भी हो गई, परवरदिगार इस मजलिस का सवाब मरहुमा तक पहुँचे। जनाब ज़ैनब का हुसैन रिजवी साहब के ज़रिए से आपने सुना, वो जनाब ज़ैनब जो कायनात में जिसे सबसे मजलूम बीवी कहा गया, मजलूमा बीवी कहा गया, अजरकुमुल्लाह। जब यही जनाब ज़ैनब तारीख मिलता है कि जनाब ज़ैनब के लिए मिलता है कि जनाब ज़ैनब ने कभी अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया है, अपने और मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया है। एक तारीख मिलती है कि जब असर आशूर से कुछ लम्हा पहले जनाब और मोहम्मद की शहादत वाक़ हो गई, और वाक़ होने के बाद जनाब अब्बास को बुलाया, और बुलाने के बाद का अब्बास औन को आप उठाओ, मोहम्मद को हम उठाते हैं। एक मसनद बिछाई, उस पर जनाब अली अकबर को बिठाया, और बिठाने के बाद का अब्बास औन को आप उठाओ, मोहम्मद को हम उठाते हैं। और उठाने के बाद कहा है मेरे परवरदिगार हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, इन कुर्बानियों के तवस्सुल से मेरा अकबर बच जाए। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। जनाब ज़ैनब वो शख्सियत है कि कभी अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। शाम गरीबा में जब भी वक्त मिला वाह हुसैना वाह अली आगे मसीहा पढ़ा। यही काफिला जब 12 मुहर्रम को रसन बस्ता हुआ, रसन के साथ कैद किया गया, कैद करने के बाद शाहराए कुफा शाम में फिराया गया। जब भी मौका मिला हुसैन का मरसिया पढ़ा, हुसैन की फजीलत बयान की, वाह हुसैना कहा। यही काफिला यही कैदी 1 साल कैद शाम में कैद कर दिए गए, अजरकुमुल्लाह कैद कर दिए गए। जब भी जनाब ज़ैनब को मौका मिला वाह हुसैना का मरसिया पड़ा। यही काफिला 1 साल के बाद जब रिहा हुआ और एक मकान खाली कराया गया, जनाब ज़ैनब ने मसनद बिछाई, और बिछाने के बाद जनाब सैयद सज्जाद को बिठाया, और बिठाने के बाद कहा ए मेरे सज्जाद तेरा बाबा मारा गया लेकिन किसी ने तुझे पुरसा न दिया, ज़ैनब तुझे पुरसा पेश करती है। यही काफिला जब मदीने आ गया और रोज़े रसूल पे आ गया, और रोज़े रसूल पे जनाब ज़ैनब ने अपने को गिरा दिया। और गिराने के बाद कहा है मेरे नाना तेरे लाल को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। ए नाना अगर ना महरमों का मजमाना होता तो ज़ैनब दिखाती अपने बाजुओं के निशान, यानी जहां मौका मिला वाह हुसैना वाह हुसैना। लेकिन यही ज़ैनब जब उठ के रोज़े रसूल से अपने घर आती है तो छोटे छोटे मुसल्ले देखती है, एक मरकबा चीख मार कर रोती है ए दोनों मोहम्मद
राजिऊन रज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिह अल्लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा, जिनके इस साले सवाब की मजलिस है, इस मजलिस के तवस्सुल से इस मजलिस का सवाब, इस मजलिस के वसीले से मरहुमा के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा, जितने भी फ़र्श अज़ा पर सामईन के चाहने वाले हैं, अज़ादार हैं, उन सब की जायज़ दिली हाजात को पूरा फरमा। मुल्क ईरान, लबनान, सीरिया, पारकनार, जहाँ जहाँ कहीं भी शहर खतरे कर रहा है, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, मोहम्मद और आले मोहम्मद के तवस्सुल से ऐ मेरे अल्लाह, मुल्क अमेरिका, इज़राइल और जितने भी दुश्मनान दीन उनको सबको नाबूद फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताक़ीद फरमा। उनके आवाज़ आसार में तमाम शिया हिजर कर्रार को शुमार फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमी मस्जिद में फातिमा ने आएगा मेरा मेहदी, रो रो के ये सदा दी। मस्जिद में फातिमा ने आएगा मेरा, मैं मुंतज़िर हूँ उसकी, अब मेरा हक दिलाने आएगा मेरा मेहदी। रो रो के ये सदा दी, मस्जिद में फातिमा ने आएगा मेरा मेहदी। रो रो के ये सदा दी, मस्जिद में फातिमा ने आएगा मेरा मेहदी। उसको सभी खबर है, किसने हैदर जलाया, देखो रसन उठा के है कौन कौन आया। किसने गवाह मांगे, किसने दिए है ताने, आएगा मेरा मेहदी। रो रो के ये सदा दी, मस्जिद में फातिमा ने आएगा मेरा मेहदी। रो रो के ये सदा दी, मस्जिद में फातिमा ने आएगा
ارمان تھے جو میرے، محسن غریب ماں کی سب حسرت مٹانے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد